Our next topic is traumatic head injury. It is important from the exam point of view. It is important topic. Traumatic head injury is the injury to either scalp, skull or the brain. ठीक है, तो जब या तो स्कैल्प या स्कैल्प होता है जो बोनी स्कल के बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, तो हेड इंजरी रेफर्स टू एनी इंजरी टू द स्कैल्प. ठीक है, जो स्किन है मतलब जो स्कल बोन के बाहर वाला जो पार्ट है जैसे स्किन है तो वो उसको बोलेंगे स्कैल्प. इट इज द इंजरी टू आइदर स्कैल्प, skull include cranial or facial bone or the brain is involved to the skull. So it might be injury to the scalp, skull or the brain. So head injury refer to the trauma to the head. This may or may not include injury to the brain. इसमें brain injury include भी हो सकता है और नहीं भी. तो traumatic head injury and brain injury are used interchangeably, है ना. कभी brain injury term use करते हैं और sometime traumatic head injury term use की जाती है. After that the etiology. The causes of head injury are mainly motor vehicle accident, एनी टाइप ऑफ असॉल्ट मीन्स वायलेंट अटैक. अगर कोई पर्सन किसी को मारता है, अटैक करता है, दैट इंक्लूड इन द असॉल्ट. फॉल्स है ना, अगर कोई कहीं से बिल्डिंग से गिर गया या फॉल्स हो गया ना, दैट में लीड टू ट्रॉमा. पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा नॉर्मली कैसे होते हैं, विच कॉजेज टीयर इन द स्किन, जैसे कि गन शूट वुंड, स्टैबिंग इंजरी एक्सेट्रा. एंड ब्लंट हेड ट्रॉमा सच एज फॉल्स, मोटर व्हीकल collision. After that, the classification of head injury. It is classified on the basis of severity and on the basis of anatomical finding. On the basis of severity, head injury is divided into minimal, mild, moderate, severe and critical. ठीक है, वी कैन कैटेगराइज इट विद द हेल्प ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. तो मिनिमम हेड इंजरी कब बोलेंगे, व्हेन द ग्लासगो कोमा स्केल इज 15 एंड नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एमनेसिया अकर. एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, ना तो पर्सन को लॉस ऑफ मेमोरी होगा ना ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा. और ग्लासगो कोमा स्केल 15 या उससे 15 होगा. ठीक है, माइल्ड कब बोलेंगे, माइल्ड व्हेन ग्लासगो कोमा स्केल इज बिटवीन 14 और 15 एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एमनेसिया टू सम एक्सटेंट, माइल्ड होगा. ठीक है, और इम्पेयर्ड अलर्टनेस और द मेमोरी. आफ्टर दैट मॉडरेट व्हेन द ग्लासगो कोमा स्केल इज बिटवीन 9 to 13 और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोर देन 5 मिनट और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है ना, जो पर्सन को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है 5 मिनट से ज्यादा अगर रहता है तो दैट कम्स अंडर द मॉडरेट. और सिवियर व्हेन द ग्लासगो कोमा स्केल इज बिटवीन 5 to 8 and critical is when the Glasgow coma scale is between 3 to 4. Minimum Glasgow coma scale is 3 and maximum is 15. So this is the division of head injury on the basis of severity and it is divided with the help of Glasgow coma scale. After that, anatomical finding. Classification of head injury on the anatomical finding. So it include injury to scalp, injury to skull, injury to meninges and injury to brain है ना. Scalp outermost जो skin की layer है हेड में, दैट इज स्कैल्प. स्कैल्प इंजरी इंक्लूड लेसरेशन, कंट्यूजन और एब्रेशन. लेसरेशन में जो स्किन है उसमें टीयर हो जाएगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है. कंट्यूजन में सिर्फ ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी और एब्रेशन में स्मॉल इंजरी होती है जैसे कि खरोंचे लगना, उस टाइप की इंजरी. आफ्टर दैट स्कल इंजरी इंक्लूड फेशियल फ्रैक्चर एंड क्रेनियल fracture. Facial fracture include mandible, orbital, nasal. And cranial fracture include linear fracture, depressed fracture, basilar fracture, comminuted fracture. After that, meningeal injury. Meningeal injury include dural tear or focal tear. Dural tear include dura and focal tear include laceration, contusion and hemorrhage. Hemorrhage includes subarachnoid hemorrhage, epidural hematoma or subdural hematoma. After that, brain injury. Brain injury include concussion. This is contusion or this is concussion, another term. And contusion
diffuse axonal injury or intracranial hemorrhage. Then we will study these one by one. First one is injury to the scalp, है ना, जब जो scalp है, skin है, उसमें injury हो जाए तब. तो it is mainly of three type: abrasion, contusion और laceration. In case of abrasion, the top layer of scalp is scraped away. जो सुपरफिशियल लेयर है उसकी स्क्रैपिंग होगी. माइनर इंजरी है, स्लाइट ब्लीडिंग होगी, जैसे कि खरोंचे लगती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एब्रेशन. आफ्टर दैट कंट्यूजन. द स्कैल्प इज ब्रूस्ड विथ possible effusion of blood into the subcutaneous layer without a break in the integrity of the skin. इसमें स्किन टीयर नहीं होता है, बट जो स्किन और सबक्यूटेनियस लेयर है उसके बीच में ब्लड इफ्यूजन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ब्लड, है ना, विच कैन बी सीन एज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्रूशिंग जिसको बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंट्यूजन, है ना. स्किन में कोई टीयर नहीं है, सिर्फ जो स्किन है कैसी हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी ड्यू टू द इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज. आफ्टर दैट लैसेरेशन, द स्कैल्प इज टॉर्न. इसमें क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, दिस इज लैसेरेशन. जो स्किन है टॉर्न हो गई है, टीयर हो गया है, मे ब्लीड प्रोफ्यूजली एंड सूचरिंग में बी नेसेसरी. इसमें सूचरिंग जरूरी होती है, आफ्टर नहीं तो पर्सन का ब्लीडिंग इंक्रीज होती रहेगी. आफ्टर दैट ट्रीटमेंट, ऑल स्कैल्प लेसरेशन आर इरिगेटेड विद सलाइन, है ना, जो लेसरेशन इंजरी है इरिगेट करनी है सलाइन से, एंड एक्सप्लोर्ड विद अ स्टेरल ग्लव्ड फिंगर, है ना, जो स्टेरल ग्लव्ड फिंगर के साथ उसको एक्सप्लोर करके देखना है कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी तो अंदर नहीं है, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी. स्कैल्प लेसरेशन रिक्वायर सूचरिंग एंड aseptic management. These are the scalp injury. It include abrasion, contusion or laceration. After that, next is skull injury. Skull injury include cranial injury और facial injury. Cranial injury सबसे पहले types of cranial injury. Cranial हो गया जो स्कल है, अपर पार्ट है ना, उसको इंजरी, और जो फेशियल इंजरी है, जो फेशियल बोन है, जब उनमें इंजरी होगी. ठीक है. स्कल इंजरी, स्कल में क्या है, बोन है सिर्फ, है ना, तो बोन में क्या फ्रैक्चर हो सकता है, तो लीनियर स्कल फ्रैक्चर. लीनियर स्कल फ्रैक्चर क्या होता है, इट इज अ सिंपल ब्रेक इन द स्कल दैट फॉलो अ रिलेटिवली स्मॉल लाइन. ठीक है. लीनियर स्कल फ्रैक्चर में सिर्फ जब फ्रैक्चर होगा उसमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी. ठीक है. बट कोई बोन के फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे, कोई बोन टूटी हुई नहीं होगी, बस सिर्फ जो फ्रैक्चर है उसकी एक लाइन विजिबल होगी कि बोन में फ्रैक्चर हुआ है. एंड कम्युनिटेड स्कल फ्रैक्चर, इट प्रोड्यूसिंग मल्टीपल बोन स्प्लिंटर्स. इसमें क्या होता है, जो बोन है इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्टिकल्स, है ना, कि छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाती है. आफ्टर दैट डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर. तो दीज आर कॉमन आफ्टर फोर्सफुल इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट ऑब्जेक्ट, है ना, जब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट फोर्सफुली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारा जाए, देन इट कॉजेज डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर. जैसे कि हैमर किसी ने मार दिया, कोई पत्थर मार दिया, तो दिस कॉजेज डिप्रेस्ड एज शोन हियर. दिस इज डिप्रेशन इन द स्कल, है ना, कि जो बोन है अंदर चली गई है. तो दिस इंजरी कॉज डेंट इन द स्कल बोन. दिस इज डेंट इन द स्कल बोन. तो इन इंजरी की वजह से स्कल बोन में डेंट हो जाता है. लीनियर में सिर्फ जो फ्रैक्चर है उसकी वजह से एक लाइन दिखाई देगी, है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है बोन का. कम्युनिटेड में जो बोन है इट इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल स्प्लिंटर्स और फ्रेगमेंट. और डिप्रेस्ड में सिर्फ डेंट बोन के ऊपर पड़ेगा, हैज शोन हियर. और बेसल स्कल फ्रैक्चर इन्वॉल्व द बेस ऑफ द स्कल, है ना, इसमें जो इंजरी है दैट इज इन द बेस ऑफ द स्कल, एंड इट मे बी लीनियर, डिप्रेस्ड एक्सेट्रा. ये लीनियर भी हो सकता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर भी हो सकता है. इट रिजल्ट फ्रॉम स्वेयर ब्लंट हेड ट्रॉमा. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ cranial fracture: linear skull fracture, comminuted skull fracture, depressed skull fracture, basal skull fracture. After that is जैसे कि यहाँ पे बेसल स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से पर्सन को क्या है, बैटल साइन प्रेजेंट हो सकता है. रेट्रो ऑरिकुलर इकाइमोसिस एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ लोअर एरिया ऑफ द स्कल, है ना. अगर स्कल के लोअर एरिया में फ्रैक्चर हुआ है, इट मे लीड टू द बैटल साइन. दिस इज रेट्रो ऑरिकुलर इकाइमोसिस. ईयर के जो ऑरिकल है उसके बैक से, उसके अराउंड, ठीक है, उसके अराउंड इकाइमोसिस हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, विच इंडिकेट द फ्रैक्चर इन द लोअर एरिया ऑफ द स्कल. और दिस
is raccoon eyes, bilateral periorbital ecchymosis associated with orbital fracture. अगर orbits में fracture है, it may lead to the raccoon eyes. In raccoon eyes there will be the periorbital ecchymosis, है ना, पेरिऑर्बिटल के आईज के अराउंड ecchymosis, bluish discoloration हो जाएगी. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ फेशियल फ्रैक्चर. ठीक है, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बोन. मैंडिबल फ्रैक्चर, अगर मैंडिबल में फ्रैक्चर होगा देन मैंडिबल फ्रैक्चर, मैक्सिलरी फ्रैक्चर, नेजल फ्रैक्चर और ऑर्बिटल फ्रैक्चर. तो दीज आर द सिम्टम इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर. अगर मैंडिबल फ्रैक्चर है, पेन होगा, ब्रूशिंग, लेसरेशन ओवर द फ्रैक्चर साइट, ecchymosis in the floor of the mouth. In case of maxilla, मिड फेस फ्रैक्चर, डिस्टॉर्शन ऑफ फेशियल सिमेट्री, है ना, फेशियल सिमेट्री क्या है, चेंज हो जाएगी, एक साइड को कुछ और होगा, फेस दूसरी साइड को कुछ और होगा. इनएबिलिटी टू क्लोज जॉ, पेन और ओडेमा. नेजल फ्रैक्चर के केस में ecchymosis and oedema of dorsum of nose, nose bleed, laceration. ऑर्बिटल फ्रैक्चर में एक तो रेकून आइज प्रेजेंट होगी, डिप्लोपिया होगा, डबल विजन होगा, ऑप्थेल्मोप्लेसिया. इट इज द पैरालिसिस ऑफ द eye muscle that surround the eye, and after that possible blindness may occur due to the injury to the eyes due to detached retina, edema, ecchymosis of eyelid, conjunctival hemorrhage or paresthesia is the tingling sensation. After that the third one is injury to the meninges. It include dural tear or focal injury, है ना. dural tear कहाँ होगा, tear in the dura mater. meninges mainly include dura mater, arachnoid matter और pia mater. dura mater is outermost layer और pia mater is innermost और arachnoid matter is middle layer. तो जब ड्यूरा मैटर में टीयर होगा, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम बेसल स्कल फ्रैक्चर, है ना. अगर बेस ऑफ स्कल में फ्रैक्चर है तो उस वजह से ड्यूरल टीयर हो सकता है. ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द टेम्पोरल, फ्रंटल, फेशियल फ्रैक्चर, इसमें क्या होगा, CSF की लीकेज हो जाएगी. आफ्टर दैट फोकल इंजरी. फोकल इंजरी इंक्लूड सेरिब्रल कंट्यूजन. कंट्यूजन में क्या होता है, सिर्फ ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, कोई स्किन में टीयर नहीं होता, सिर्फ सबक्यूटेनियस टिश्यूज में ब्लड इफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो लेसरेशन और हैमरेज. फोकल इंजरीज में सेरिब्रल कंट्यूजन, लेसरेशन और हैमरेज आएगा. तो सेरिब्रल कंट्यूजन क्या है, कंट्यूजन इज अ ब्रूइश टू द ब्रेन टिश्यू व्हेन अ नंबर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल लीक इनटू द ब्रेन टिश्यू, है ना. जब जो स्मॉल ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाएंगे और ब्रेन टिश्यू में ही ब्लड कलेक्ट हो जाएगा. लेसरेशन क्या होता है, it is the torn in the skin which may lead to profuse bleeding. suturing may be required in this case, है ना. और नेक्स्ट है हैमरेज, जब मेनिंजेस में लेसरेशन हो जाएगा, टीयर हो जाएगा. आफ्टर दैट हैमरेज मीन्स ब्लीडिंग. and hemorrhage include epidural hematoma, subdural hematoma और subarachnoid hemorrhage. ठीक है, एपीड्यूरल हेमेटोमा. एपीड्यूरल कब स्पेस कौन सा होता है, इट इज अ स्पेस बिटवीन द स्कल बोन एंड द ड्यूरा मैटर. ठीक है, जब स्कल बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में ब्लीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज एपीड्यूरल हेमेटोमा. इट रिजल्ट फ्रॉम ब्लीडिंग बिटवीन द ड्यूरा एंड द इनर सरफेस ऑफ द स्कल. सेकेंड है सबड्यूरल हेमेटोमा. सबड्यूरल स्पेस इज अ स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द आर्केनोइड मैटर. So it is a bleeding between the dura mater or arachnoid layer of meningeal covering of the brain. Next is subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid space is a space between arachnoid और pia mater. ठीक है, तो जब ब्लीडिंग होगी subarachnoid स्पेस में, then it is called as subarachnoid hemorrhage. तो these are the types of hemorrhage: epidural hematoma, subdural hematoma और subarachnoid hematoma. तो इंजरी टू meninges include dural tear और focal injury. Focal injury include cerebral contusion, laceration and hemorrhage. Hemorrhage include epidural, subdural और subarachnoid hemorrhage. After that its clinical manifestation क्या है, sudden और severe headache. The person may have nausea and vomiting, unconsciousness, seizure, paralysis, dizziness and weakness of the limb, memory loss, confusion or unconsciousness. After that next is injury to the brain.
तो ब्रेन इंजरी इज डिवाइडेड इनटू कंट्यूजन, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी और इंट्राक्रेनियल हैमरेज। तो कंट्यूजन मीन्स शेकिंग वायलेंटली, है ना, जब कहीं पे जैसे कि कोई गाड़ी एकदम से ब्रेक लग जाती है ना, तो क्या होता है, एकदम से शेकिंग मूवमेंट होती है। तो वैसे ही जब कोई इंजरी है, ब्रेन इंजरी होगी, तो ब्रेन की शेकिंग मूवमेंट उस टाइम पे हो सकती है ना। जो ब्रेन है वो क्या करेगा, शेक करेगा, अंदर स्कल के अंदर वो हिलेगा। द सेरेब्रल कंफ्यूजन इज डिफाइंड एज ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है विच कैन बी टेम्परेरी, मतलब विच कैन डिसअपियर विद टाइम, ठीक है, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। टेम्परेरी न्यूरोजेनिक डिसफंक्शन, ठीक है, टेम्परेरी होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। न्यूरोजेनिक डिसफंक्शन कॉज्ड बाय मैकेनिकल फोर्स टू द ब्रेन, जब एकदम से कोई फोर्स ब्रेन के ऊपर पड़ेगी, है ना, किसी ने हैमर से मार दिया ये कुछ, है ना, तो क्या है, ब्रेन की शेकिंग मूवमेंट होगी, तो पर्सन को टेम्परेरी, ट्रांसिएंट टेम्परेरी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाएगा, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना। तो कंफ्यूजन कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू अ अनकॉन्शियस स्टेट फॉर ओवर 3 मिनट। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कंट्यूजन। कंट्यूजन मीन्स ब्रूशिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू, जब ब्रेन टिश्यू में ब्लड वेसल रप्चर होंगी और bleeding होगी। Majority of contusion occur in frontal or temporal lobes. After that next is diffuse axonal injury which is called as DIA. diffuse का मतलब, diffuse axonal injury is the tearing of brain long axons, है ना, जब axon में इंजरी होगी, एक्सोनल इंजरी होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। तो इट इज प्राइमरी इंजरी ऑफ डिफ्यूज माइक्रोस्कोपिक डैमेज टू द एक्सोन इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द ICP। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल हैमरेज, ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ। दिस आर द टाइप्स ऑफ इंजरी ऑफ द ब्रेन, कंट्यूजन, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी और इंट्राक्रेनियल hemorrhage. So these are the types of brain injury. It include injury to the scalp, which include laceration, contusion, abrasion, and injury to the skull, which include facial fracture or cranial fracture. Facial fracture include mandible, maxilla, orbital, nasal, or cranial fracture include linear fracture, depressed fracture, comminuted fracture, etc. And then injury to meninges, it include dural tear and focal tear. Focal tear include laceration, contusion, and hemorrhage. Hemorrhage include subarachnoid hemorrhage, epidural hematoma or subdural hematoma. After that brain injury include contusion, diffuse axonal injury or the intracranial hemorrhage. These are the types of brain injury on the basis of anatomical finding. After that, the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation include history collection, physical examination, CT scan, MRI, X-ray of the skull to check any type of fracture or any type of hematoma, angiography to check the cerebral blood vessels, neurological examination to check the neurological status of the person, and blood test. तो हिस्ट्री टेकिंग में क्या हिस्ट्री लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, एविडेंस ऑफ सीजर, पर्सन को सीजर तो नहीं आ रहे, हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, कोई पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई मेडिकेशन तो पेशेंट ने नहीं लिए, सच एज एंटीकोगुलेंट्स. आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड ग्लासगो कोमा स्केल. On the basis of Glasgow Coma Scale, the severity of the head injury can be determined. Pupil size and the response can be checked. Signs of skull fracture such as raccoon eyes, brushing, cerebrospinal fluid, rhinorrhea, otorrhea can be checked, and bleeding from the ear, hemotympanum can be checked, which is called as the bleeding from the ear. It also indicates the head injury. And a neurological examination can be done with to check the sensation, and also with the help of reflexes of the patient should be checked. After that, computed tomography and MRI, CT scan is considered the best diagnostic test to evaluate the craniocerebral trauma. And
it help in the diagnosis of the head injury. But MRI is more sensitive than CT scan in detected small lesion, है ना. MRI में हम ज़्यादा deeply small lesion को detect कर सकते हैं. After that, X-ray can also be done to detect any type of cervical injury or fracture. Then the management, goal of the management is to maintain adequate cerebral tissue perfusion, है ना, क्योंकि जो ब्रेन टिश्यू है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको मेंटेन करना है एडिक्वेट सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन. रिमेन नॉर्मोथर्मिक, की जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है. टू रिलीव पेन, डिस्कम्फर्ट और द इन्फेक्शन. अटेन मैक्सिमम कॉग्निटिव, मोटर और सेंसरी फंक्शन. आफ्टर दैट जनरल मेयर क्या क्या करेंगे, हेड एलिवेट करेंगे टू कंट्रोल द ICP, क्योंकि इस कंडीशन में हेड इंजरी के कंडीशन में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है दैट इज इंक्रीज, तो द हेड एलिवेशन करेंगे. हेड शुड बी एलिवेटेड एट 30 to 45 डिग्री अबव द हार्ट लेवल, है ना. जब एलिवेट करेंगे तो क्या होगा, इट एनहांस विनस ड्रेनेज, की जो ड्रेनेज है ब्लड की वो इम्प्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और ICP भी डिक्रीज हो जाएगा. नेक वेन कॉम्प्रेशन ऑल्सो डन टू डिक्रीज द ICP, ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए. मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, है ना. पेशेंट को क्या है, वार्म रखना है, उसको ब्लैंकेट्स देने हैं ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे. ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को. हाइपर वेंटिलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी. चेस्ट फिजियोथेरेपी कैन ऑल्सो बी गिवन, बट इट कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ सिडेशन. पहले पेशेंट को सिडेशन देना, आफ्टर दैट चेस्ट फिजियोथेरेपी कैन बी डन. मेंटेन सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन बाय द फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन. IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि ICP भी इंक्रीज है इसमें. ऑस्मोटिक डायरेटिक कैन ऑल्सो बी गिवन टू द पेशेंट एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू मेंटेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. After that, the medical management. Medical management include diuretics such as osmotic diuretics can be given, analgesic to relieve the pain, muscle relaxant, इसमें क्या है, muscle congestion हो सकती है तो muscle relaxant can be given, sedative for the comfort of the patient or to decrease the anxiety level of the patient, antihypertensive drugs to decrease the blood pressure of the person. After that, this is I will clear and then discuss with you hypertonic या hypotonic solution देंगे शायद इसमें. Anti-epileptic drugs such as phenytoin can also be given, and antipyretic to maintain the normal body temperature. After that, the surgical management include evacuation of blood clot by the craniotomy. In craniotomy, the bone flap is temporarily removed from the skull to assess the brain tissue, है ना. elevation of depressed fracture of the skull, अगर जो skull bone है depress हो गई है तो उसको थोड़ा elevate करना है, open करना है cranium को, that is called as craniotomy for decompression, है ना, डिकम्प्रेस करने के लिए. CSF डाइवर्जन प्रोसीजर, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग कर सकते हैं ताकि जो CSF है वो डाइवर्ट हो जाए, है ना, क्योंकि CSF इज इंक्रीज इन दिस, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा. रिमूवल ऑफ पैथोलॉजिकल लीजन, अगर ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड, एंड सूचरिंग द स्वेयर स्कैल्प लेसरेशन, अगर स्किन में टीयर हुआ है तो उसको सूचरिंग करना है. आफ्टर दैट द नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड नर्सिंग असेसमेंट, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन फर्स्टली चेक करेंगे. देन ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर शुड बी चेक, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्सेस शुड बी चेक्ड, एंड साइन ऑफ एलिवेटेड ICP and sign of CSF leakage from the either nose or from the ear can be checked. Then the nursing diagnosis include ineffective tissue perfusion related to interruption of cerebrovascular fluid associated with cerebral hemorrhage and the edema, and then acute pain related to trauma and the cerebral edema.
After that, hyperthermia means increased body temperature related to increased metabolism and loss of cerebral integrative function secondary to possible hypothalamus injury. And after that, preventive measure include prevent car or motorcycle accident and wear the safety helmets or wear the safety belts when driving. This is all about